Good morning, everyone. Today we will discuss one important topic of plant anatomy, that is vascular cambium. So our today's learning objectives are: we will discuss about vascular cambium, structure of cambium, which is made up of two types of initial cells. One is fusiform initial, other are ray initials. So we will discuss about these two cells. Then we will discuss about the activity of cambium, origin and position of cambium, and finally a role of cambium in burying and grafting. So this is the picture which shows various layers or zones in a stem. So we can see here, this is the outermost bark, then inner bark. So bark is not a technical term. Bark is not a technical term. Inner to this is this important layer, that is the cambial cell layer, which is the vascular cambium. Then it contains the sapwood and inner dark color heartwood that we'll discuss later on in detail. So vascular cambium, जो vascular cambium है, it is the meristematic cell which is present in the lateral side. So this is a type of lateral meristemy. It means it is present on the lateral side of the stem, root or other plant parts. So vascular cambium example है lateral meristem का. So this is the lateral meristem, and it gives rise to secondary vascular tissue. So secondary vascular tissues are secondary xylem and secondary phloem, and the secondary xylem is commonly known as wood. So if we define wood, so secondary xylem is wood. So अगर हम इसको longitudinal section में देखें, so it appears as strand or as a hollow cylinder. तो एक cylinder की तरह दिखाई देगा हमें, ये hollow cylinder की तरह जो vascular cambium है. And in case of some petioles, leaves और veins, इनमें हमें दिखता है ये strips में, छोटी छोटी strips में, and that undergo secondary growth. ऐसे petioles और leaves जो कि secondary growth show करते हैं, they have some strips, small strips of this vascular cambium. और जो कैम्बियम की एक्टिविटी है, इट इज़ मोर एक्टिव इन केस ऑफ एवरग्रीन स्पीशीज. जो एवरग्रीन प्लांट्स हैं उनमें कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द डेसिडियस वन. डेसिडियस plants are those plants which shed their leaves in winters, जो अपने leaves को shed करते हैं winters में to prevent the harsh conditions. और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं डेसिडियस प्लांट्स. तो उनमें कैम्बियम की एक्टिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू द एवरग्रीन स्पीशीज. नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म्स और जो डाइकॉट्स हैं उनमें जो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू है, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू इज द टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम, दैट इज द एम्ब्रियोनिक कैम्बियम. उससे जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनता है, दैट स्टेज फॉर शॉर्ट स्पेन, वो थोड़े से समय के लिए रहता है. एंड आफ्टर दैट इट इज़ रिप्लेस्ड बाय सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू. इट मीन्स it is replaced by secondary xylem and secondary phloem. So जो primary xylem और primary phloem है, that gets crushed by the formation of this secondary vascular tissue, and it is formed by this vascular cambium, and it is due to the activity of cambium that I have already discussed. The next, structure of cambium. So structure of cambium की अगर बात करें, so this is the stump, this is the section of stem we can see here, and this layer represents the vascular cambium. So this is the vascular cambium, and this vascular cambium is formed by two types of initial cells. So cells that will give rise to the secondary xylem and secondary phloem. There are two types of vascular cambium cells.
जिनसे वेस्कुलर कैम्बियम बनता है. कैम्बियम इज बेसिकली अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट हैव द पावर ऑफ सेल डिवीजन, और इसका जो मेन फंक्शन है ये बनाता है जाइलम और फ्लोएम. So there are two types of cells. One is ray initial. So these patches we can see here, these are the ray initials, and these cells, the longitudinal cells, the large cells with tapering ends, are known as fusiform initial. Fusiform का मतलब होता है spindle shape. So the true cambium, जो cambium होता है, made up of single layer, एक ही layer होती है, but ये जो सेल्स हैं ये कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं. सो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई क्लियरली दिस सिंगल लेयर. सो इट एक्ट एज, सो वी सी अ वाइड जोन ऑफ सेल्स, कैम्बियम सेल्स. सो बेसिकली इट इज़ अ सिंगल लेयर, क्योंकि ये फास्ट डिवाइड करते हैं. सो हमें एक जोन दिखती है इसकी. सो इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर्स. Then it is hard to distinguish between initials and surrounding undifferentiated vascular tissue. So इसलिए डिफरेंशिएट करना इनको डिफ़िकल्ट होता है कि कौन सा कैम्बियम के सेल्स हैं और कौन से वेस्कुलर टिश्यू है, मीन्स सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम. देन जो ये सेल्स हैं कैम्बियम के, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म. जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वैसे ही हैं ये. डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और अगर इसकी शेप की बात करें सो दे आर मोस्टली आइसोडायमेट्रिक इन इट्स शेप. सो शेप में ये सारे आइसोडायमेट्रिक हैं. देन जो सेल्स हैं दे आर हाईली वैक्यूलेटेड, इट मीन्स दे हैव लॉट ऑफ वैक्यूल्स इन दैम. और जो कैम्बियम है दो तरह के सेल्स से मिलके बनता है. वन इज़ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल. फ्यूजिफॉर्म का मतलब होता है स्पिंडल शेप, and second one is ray initial. These are the parenchymatous cells which forms a radial vascular system. So let's discuss it in detail. Fusiform initial जो cells हैं they are the elongated cells with tapering ends. ये ऐसे cells हैं जो लंबे हैं and they have tapering ends. और जो फ्यूजिफॉर्म है इसका मतलब होता है स्पिंडल शेप. सो दीज सेल्स आर elongated with tapering ends, और टर्म implies to shape like a spindle. स्पिंडल की तरह जो शेप है. देन ये जो सेल्स हैं these are responsible to form the secondary vascular tissue, और वो है secondary xylem and secondary phloem. सो ये secondary xylem और secondary phloem बनता है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से. जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हैं दीज आर द प्रिज्मेटिक सेल्स हैंगे इन द मिडल रीजन एंड अपीयर्स वेज शेप एट द एंड्स. और इसकी जो शेप है एंड्स में इट इज़ वेज शेप्ड. नेक्स्ट जो सेल्स हैं ये सबसे ज़्यादा जो लंबे हैं रिकॉर्ड किए गए हैं सिक्विया सेम्परवायरेंस में. दिस इज़ अ जिम्नोस्पर्म, इसको कॉमनली बोला जाता है रेडवुड ट्री. इट इज़ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, और इसमें जो इसका साइज़ है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स का इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8.7 मिलीमीटर. अब जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स हैं इनकी जो लेंथ है वो वेरी करती है विद इन स्पीशीज़. ये सेम नहीं होती है विद इन स्पीशीज़ में भी. इट आल्सो वेरीज विद द ग्रोथ कंडीशंस. जो ग्रोथ कंडीशंस हैं कैसी कंडीशंस हैं उन पे भी डिपेंड करता है इसका साइज. देन द एक्सियल सिस्टम ऑफ कैम्बियल जोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स. जो एक्सियल सिस्टम है मींस द मिडल सिस्टम इन द स्टेम, जो कि कैम्बियम लेयर है वो बनती है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से और इसी के डेरिवेटिव से, मींस इसके डिवीजन से जो सेल्स बनते हैं उन्हीं के डेरिवेटिव बनाते हैं axial system of cambial zone. जो cambial zone है that is formed by this fusiform initials. Next is types of cambium on the basis of arrangement of fusiform initials. जो fusiform initial cells हैं उनके arrangement के बेस पे cambium दो तरह का होता है. One is storied और stratified cambium. In this case जो fusiform initial cells होते हैं they lie in horizontal axis
और इसके जो एंड्स होते हैं दे आर एट द सेम लेवल, वी कैन सी इन दिस पिक्चर। सो इस तरह की जो अरेंजमेंट है दिस इज नॉन एज स्ट्रेटिफाइड और स्टोरेड कैम्बियम। और ये जो कैम्बियम है इट विल गिव राइज टू स्टोरेड वुड। सो सेल्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रो with their ends at the same level. So इसके जो ends हैं they are present at the same level, we can see in this picture. So this type of arrangement is known as storied cambium. We can see here, this is the picture. Then arrangement is called storied or stratified cambium and it gives rise to storied wood. The next we have non-storied or non-stratified cambium. In this type जो ends हैं fusiform initials के they don't lie in the same level, they gets overlapped. ये overlap हो जाते हैं, we can see in this picture. So इस तरह की जो arrangement है this will give rise to the second type of cambium, that is non-storied or non-stratified cambium. So cells shows no regular arrangement and their ends overlap, और इसके ends overlap करते हैं। इस तरह के कैम्बियम को हम कहते हैं नॉन स्टोरेड और नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम एंड इट गिव राइज टू नॉन स्टोरेड वुड। सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हियर नॉन स्टोरेड फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। इसमें जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हैं दे आर नॉट एट द सेम लेवल, वी कैन सी इन दिस पिक्चर। इसमें सेम लेवल पे नहीं है, वाइल इन केस ऑफ स्टोरेड फ्यूजिफॉर्म वी कैन सी जो इसके एंड्स हैं they are approximately at the same level. So this type of wood is known as storied fusiform initial or storied fusiform wood, and these cells are known as storied fusiform initials, while जिस पे जो fusiform initials हैं इनके ends same level पे lie नहीं करते हैं, they are randomly arranged और ये overlap करते हैं। So इस तरह के जो cells हैं उनको कहा जाता है non-storied fusiform initials. The next second type of cells are ray initials. So in this picture we can see here जो ये वाला region है, these cells are known as ray initials. These are isodiametric with flattened axis. Isodiametric होते हैं ये these are not tapering cells or elongated cells. They give rise to parenchymatous vascular rays. ये बनाती हैं parenchymatous vascular rays which helps in radial conduction. So there are few ray initials. ये जो ray initials होते हैं बहुत कम होते हैं as compared to fusiform initials, but in some cases, in some species, ये इनका जो number है that may reach up to 50% of the cambium. So cambium का 50% भी ये बना सकते हैं। Then जो main function है they form the radial system of cambial zone. So radial system of cambial zone बनाते हैं ये and it will give rise to the rays, medullary rays. Next we will discuss about the activity of cambium. So cells of cambium divide by periclinal division. So this is the picture which shows periclinal division. In this type of division there is increase in number of layers. Number of layer increase होंगी, of course cell का number भी increase होगा but number of layers are also increased. But in case of anticlinal division इसमें नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज नहीं होती हैं, जस्ट नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। सो इसके रिजल्ट से पेरिक्लिनल डिवीजन के रिजल्ट से इट विल फॉर्म न्यू सेल्स टूवर्ड्स प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। आफ्टर एवरी डिवीजन इन कैम्बियल सेल वन डॉटर सेल स्टार्ट फॉर्मिंग secondary is forming xylem and other will form the phloem and other remains meristematic. So होता क्या है, जब ये सेल डिवाइड करते हैं कैम्बियम के सेल, ये बाहर की तरफ को बनाता है phloem, towards epidermis it will form phloem and towards inner side it will form xylem that we have already discussed. और कुछ एक जो सेल्स हैं they stay meristematic means डिवाइड करते रहते हैं। Before differentiation न्यूली फॉर्म्ड सेल में डिवाइड वंस और ट्वाइस। ऐसा नहीं है कि जैसे ही कैम्बियम का सेल डिवाइड हुआ डिफ्रेंशिएट हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम में। बिफोर डिफ्रेंशिएशन ये जो सेल्स बने हैं डिवीजन के से कैम्बियम के, दे कैन अगेन डिवाइड वंस और ट्वाइस, आफ्टर दैट दे विल डिफ्रेंशिएट, उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट होंगे। सो इस वजह से जो ये डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाती है, so that's why जो कैम्बियम है it is usually single layered but it gives the appearance of
मल्टी लेयर्ड, तो इसलिए हमें ये एक जोन की तरह दिखाई देता है, क्योंकि ये जो सेल्स हैं कैम्बियम के डिवीजन से बनते हैं वो इमीडिएटली डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, बिकॉज दे विल डिवाइड वंस और ट्वाइस आफ्टर दैट दे गेट्स डिफरेंशिएटेड। सो वहाँ पे हमें एक जोन की तरह अपीयरेंस दिखती है कैम्बियम। In this picture, this is the TS of stem of conifers. Conifers like that of citrus deodara, जो gymnosperms हैं. This picture shows clear-cut zonation. We can see the annual rings. इसमें annual rings हम देख सकते हैं. So ये जो differentiation होता है, ये wood में differentiation होता है environmental conditions की वजह से. So this type of arrangement is shown by temperate conditions. We can see here, इसमें जो ये light color की जो layer है, this is known as early wood. Early wood is also known as spring wood. So ये बनता है spring में, क्योंकि spring में जो conditions होती हैं they are favorable, abundant food और water supply होता है, light भी की अच्छी supply होती है, and in winters the conditions are tough. So this dark layer, it is the dark layer. इसमें जो cells होते हैं they are smaller in size with thick walls. So this type of wood is known as late wood, or it is also known as autumn wood. इसको autumn wood भी कहा जाता है. ये दोनों तरह की जो wood है, early wood and autumn wood, it will form the annual ring, one annual ring. So by calculating these rings we can calculate the age of plant, and this phenomenon is known as dendrochronology. So in tropical regions जो कैम्बियम की एक्टिविटी है that is almost constant, means इसमें स्प्रिंग और ऑटम का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कैम्बियम की एक्टिविटी का. बट इन टेम्परेट रीजन हमने यहाँ पे इस पिक्चर में डिस्कस किया, जो कैम्बियम है वो ज़्यादा एक्टिव होगा स्प्रिंग में, सो जल्दी जल्दी सेल्स को बनाएगा, लार्ज साइज के सेल्स बनाएगा, बट कैम्बियम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है विंटर्स में. सो इन टेम्परेट एरियाज एक्टिविटी इज सीजनल, मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन, सीजन के ऊपर डिपेंड करता है. देन इट इज़ मोर एक्टिव इन केस ऑफ स्प्रिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड, और वो बनाएगा स्प्रिंग वुड. एंड इन ऑटम द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिटार्ड्स, मीन्स रिड्यूस हो जाती है. एंड क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं ऑटम में दे आर हार्श, टफ होती हैं. सो ये दोनों स्प्रिंग वुड और जो ऑटम वुड है, दीज गिव राइज टू दिस वन एनुअल रिंग. सो वी कैन सी हियर द कैम्बियम एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय external and internal factors. So external और internal factors environmental factors हैं, जैसे कि फोटो पीरियड्स हैं, मीन्स लाइट ड्यूरेशन कितनी है, ग्रेविटी और जो इंजरीज हैं और टेम्परेचर है. ये जो फैक्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम. सो दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस पिक्चर दैट वी हैव डिस्कस्ड. द नेक्स्ट, ओरिजिन एंड पोजिशन ऑफ कैम्बियम. अगर हम वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें सो ये बनता है प्रो कैम्बियम से. जो एम्ब्रियोनिक कैम्बियम है उसी से बनता है कंप्लीट वेस्कुलर कैम्बियम. सो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम जो बनते हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रो कैम्बियम. दिस इज द एम्ब्रियोनिक कैम्बियम विच इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज. और जो प्लांट्स जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, सेकेंडरी ग्रोथ is the growth in girth. जो diameter increase होता है किसी भी plant का due to the activity of this vascular cambium, उसको कहा जाता है secondary growth. So जो plants जिनमें secondary growth नहीं होती है they show the formation of vascular tissue from the procambium. So procambium without any exception सभी plants में present होता है, चाहे वो monocots हैं चाहे वो dicots हैं, और ये procambium बनाता है xylem और phloem. While the plants with secondary growth, जो plants होते हैं secondary growth show करते हैं, some part of, कुछ जो part है procambium का वो हमेशा meristematic रहता है. It means it retain its capacity of cell division. So due to this ability, ये जो plants हैं वो हमेशा grow करते रहते हैं in girth, diameter में grow करते रहते हैं. And these रिमेनिंग सेल्स विच जो कि मेरिस्टेमेटिक रहते हैं ये बनाते हैं कैम्बियम प्रॉपर.
जबकि जो मोनोकॉट्स हैं और जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो अपीयर नहीं होता है या फिर वो हमेशा इनएक्टिव रहता है। इसीलिए ये जो प्लांट्स हैं दे आर नॉट एबल टू शो सेकेंडरी ग्रोथ, दैट इज़ ग्रोथ इन गर्थ, क्योंकि उसमें प्रॉपर वेस्कुलर कैम्बियम नहीं बन पाता है। और जो जाइलम एंड फ्लोएम होता है इन प्लांट्स में इज दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रोकैम्बियम। देन रिजल्टेड वेस्कुलर टिश्यू रिमेन्स प्राइमरी। सो इसकी वजह से जो इसमें वेस्कुलर टिश्यू है तो हमेशा प्राइमरी रहता है। इट मीन्स प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम थ्रू आउट इट्स लाइफ। इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर देर आर टू टाइप्स ऑफ कैम्बियम। जो कैम्बियम है वन कैम्बियम, ये एक वेस्कुलर बंडल है, कंप्लीट वेस्कुलर बंडल। इसके बीच में जो कैम्बियम है, वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम है, इस कैम्बियम को कहा जाता है फेसिक्यूलर कैम्बियम और इसको कहते हैं हम इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। बट जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है किसी भी प्लांट में तो इसके बीच में, सो देयर इज दिस वन इज सेकेंड वेस्कुलर बंडल। जो ये दो वेस्कुलर बंडल्स हैं इनके बीच की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ दे बिकम्स मेरिस्टेमेटिक। ये भी सेल मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, मीन्स दे रिटेन इट्स कैपेसिटी ऑफ सेल डिविजन एंड दे फॉर्म द सेकेंड टाइप ऑफ कैम्बियम विच इज़ नॉन एज interfascicular cambium. So inter means between two. So there are two vascular bundles. इनके बीच में जो कैम्बियम बनता है this cambium is known as interfascicular cambium. So in combination with fascicular cambium and interfascicular cambium it give rise to the vascular cambium और ये बनाता है secondary growth of plant। ये अंदर की तरफ को बनाता है जाइलम और बाहर की तरफ को बनाता है सेकेंडरी फ्लोएम। सो इन डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एक्सेप्शनली कुछ एक मोनोकॉट्स हैं लाइक युक्का एंड ड्रेसिना, जो वेस्कुलर कैम्बियम है दैट रिमेन्स एक्टिव। मीन्स जो वेस्कुलर कैम्बियम है इट हैज़ इट्स एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज आर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सो इन डाइकॉट रूट जो कैम्बियम है दैट पार्टली ओरिजिनेट फ्रॉम द डिवीजन ऑफ कंजक्टिव टिश्यू। सो कंजक्टिव टिश्यू is the tissue which is present in between the two vascular bundles in case of roots. पार्टली जो कैम्बियम है बनता है कंजक्टिव टिश्यू से और पार्टली इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ पेरिसाइकल। सो दो तरह के सेल्स से मिलके बनता है कैम्बियम इन केस ऑफ रूट्स। एक पार्ट बनेगा कंजक्टिव टिश्यू से एंड सेकेंड पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द सेल्स ऑफ पेरिसाइकल। देन इन केस ऑफ स्टेम जो कैम्बियम है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रोकैम्बियम और जो प्रोकैम्बियम होता है इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन मेटाजाइलम एंड मेटाफ्लोएम और इसको कहा जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। सो ये जो कैम्बियम है वी कैन सी हियर जो कि एक वेस्कुलर बंडल है, इसके बीच में जो कैम्बियम है इसको कहा जाता है फेस्कुलर और इसको हम कह सकते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। देन एक एडिशनल जो स्ट्रिप है जो बनती है कैम्बियम की दैट इज़ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर मीन्स बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल्स। सो ये जो स्ट्रिप है जो मैं पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, सो दिस स्ट्रिप इज नॉन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन बिटवीन द टू वेस्कुलर बंडल्स। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो पैरेन्काइमा है उससे बनता है ये स्ट्रिप एंड इट इज़ नोन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है it is a type of secondary meristem. So it is a type of secondary meristem because जो इसके बीच में cells present होते हैं वो parenchymatous हैं, means they are already differentiated cell, but under certain conditions जो parenchymatous cells हैं they have regained its power of cell division and they form the secondary meristem. In case of monocots जो वेस्कुलर बंडल्स हैं दे आर क्लोज्ड, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल मीन्स ऐसे वेस्कुलर बंडल्स विच लैक्स कैम्बियम, जिनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। सो मोनोकॉट्स में कैम्बियम
एब्सेंट होता है विद सम एक्सेप्शंस लाइक यक्का एंड ड्रेसिना, ये एक्सेप्शंस हैं, ये मोनोकॉट्स हैं बट दे हैव वेस्कुलर कैम्बियम. देन नेक्स्ट is cambium in budding and grafting. So जो cambium है it plays very important role in bud grafting and stem grafting. So stem grafting और bud grafting में cambium का बहुत important role होता है. This is the section we can see here. So बाहर की जो layer है this is bark के अंदर वाला जो portion है this is the cambium. और जो grafting है this portion, this cambium portion plays important role, and then it contains phloem and xylem. So cambium of stalk is the root portion. एक grafting में we use two varieties. एक जो वैरायटी है उसका हम रूट सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है स्टॉक, और दूसरा जो प्लांट वैरायटी है जिसमें हम करते हैं यूज स्टेम पोर्शन, सो दैट इज कॉल्ड नॉन एज सायोन. ये जो दोनों पोर्शंस हैं दे यूनाइट्स इन टू फॉर्म अ कैलस एंड फॉर्म्स अ कॉन्टीन्यूस लेयर ऑफ कैम्बियम. सो दोनों का कैम्बियम का जो रीजन है इसका मिलना ज़रूरी है, एंड दे विल फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस लेयर between the stalk and scion and forms the normal conducting tissue और normal conducting tissue बनता है. So ये जो एक्टिविटी है ये एब्सेंट होती है in case of monocots. So that's why जो monocots हैं उनमें grafting नहीं होती है because they have closed vascular bundles. But some exceptions, in case of monocot we have some examples like Dracaena, Yucca, Agave and Veretum. ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें कि कैम्बियम प्रेजेंट होता है एंड दे शो एनामेलस, वी कैन से एबनॉर्मल टाइप ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. इन केस ऑफ बड ग्राफ्टिंग, जो बड है, बड ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, जो बड है किसी प्लांट का जिसमें थोड़ा सा बार्क भी प्रेजेंट होता है, वो बड को हम बार्क के साथ ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर, और हम दूसरे प्लांट में जहाँ पे हमने बड को ट्रांसफ़र करना है वहाँ पे एक छोटा सा कट बनाएंगे एंड जो कैम्बियम वाला पोर्शन है उसको एक्सपोज करेंगे. एंड व्हेन वी ब्रॉट दिस बड इन कॉन्टेक्ट विद द कैम्बियम ऑफ स्टेम जो कि दूसरा प्लांट है, जब इन दोनों का जो कैम्बियम है दैट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, सो दैट विल फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस कंडक्टिंग टिश्यू. And this cambium is responsible for the success of this grafting in case of stem as well as in case of bud. So union of stalk and scion takes place mainly due to division of cambial cells. जो इन दोनों का joining है या we can say union है, that is mainly due to the division of cambial cells. So vascular cambium plays very important role in case of grafting. So this is all about today's discussion. Thank you. Have a great day.